Hello dear students, welcome to you in your BA third year English literature class. Today I am going to discuss your first paper, History of English Literature. In today's session I am going to discuss about each and everything which is related to metaphysical poetry. Okay, let's start. The metaphysical poetry. Metaphysical poetry developed in the last stage of age of Shakespeare, probably during the early 17th century, and John Donne was the founder of metaphysical poetry. Dr. Johnson, for the first time, named this group as metaphysical poets, who borrowed it from Dryden's famous phrase, "Donne affect the metaphysicals not only in his satire but in enormous verses." देखिए, जो मेटाफिजिकल पोइट्री है, ये टर्म मेटाफिजिकल और मेटाफिजिक्स इन पोइट्री इज द फ्रूट ऑफ रेनिसा ट्री. ये रेनिसा ट्री का फ्रूट है. रेनिसा जिस समय एलिजाबेथन पीरियड चल रहा था, रेनिसा आई है, उसी समय वही पीरियड शेक्सपियर का माना जाता है. शेक्सपियर थोड़ा सा इसके बाद आए हैं. ओरिजिनली द टर्म मेटाफिजिकल पोइट्री वाज क्वाइंड बाय जॉन ड्राइडन. जॉन ड्राइडन ने इसको ओरिजिनली देखा जाए तो इस वर्ड को क्वाइन किया था एंड लेटर पॉपुलराइज्ड बाय सैमुअल जॉनसन इन हिज बुक. अपनी किस बुक में? लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स 1179 टू 1781 में इन्होंने इस टर्म को क्वाइन किया था जॉन डन के लिए. इंट्रोडक्शन. द वर्ड मेटा मीन्स बियॉन्ड एंड फिजिकल मीन्स फिजिकल नेचर, जो फिजिकल नेचर से परे हो. मेटाफिजिकल पोइट्री मीन्स पोइट्री दैट गोज बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड ऑफ द senses and explores the spiritual world. Metaphysical poetry refers to a type of very intellectual poetry. इसको जो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल कैंडिडेट होता है वही समझ पाता है. इट इज़ अ टाइप ऑफ पोइट्री डीलिंग विथ एब्स्ट्रैक्ट और फिलोसफिकल सब्जेक्ट सच एज लव, रिलीजन, गॉड, ब्यूटी, फेथ एंड सो ऑन. देखिए, इनका जो टॉपिक होता है, जो इनका सब्जेक्ट होता है, वो नहीं चेंज हुआ है, लेकिन इन्होंने फिलोसफिकल सब्जेक्ट इस तरह से लिया, उसके बारे में जो इनके व्यूज़ का रिप्रेजेंटेशन होता है वो इस तरह से होता है कि जो एक साधारण सा कैंडिडेट है उसको इसका मीनिंग निकालना काफ़ी डिफिकल्ट पड़ जाता है. Thus, metaphysical poetry means the poetry which addicted to witty, consists and far-fetched imagery. This term, metaphysical, implies a process of dry reasoning, a speculation about the nature of universe and the problems of life and death. Metaphysical poetry is direct sensuous apprehensions of thought or recreation of thought into feeling. इसके बारे में देखिए दंते का क्या व्यू है मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में. Dante's view about metaphysical poetry. Dante says about metaphysical poetry, thoughts transmuted into the imagery of dreams. ऐसा उनका अपना मानना है मेटाफिजिकल पोइट्री के लिए. इसमें जो विचार है उनको ट्रांसम्यूट कर दिया जाता है इमेजरी ड्रीम में, मतलब उनको परिवर्तित कर दिया जाता है. According to Grierson, metaphysical poetry has been inspired by a philosophical conception of universe and
and of the role assigned to the human spirit in this life. It arises when the physical world loses its stability and the people lose faith in the orthodox thoughts and belief. At such times, sensitive poets like Donne turns inwards and aim at a better understanding of themselves and world around them. ये ग्रियर्सन के अकॉर्डिंग उन्होंने जो मेटाफिजिकल पोइट्री को कहा है. The word they create become more important to them. जो उन्होंने वर्ड क्रिएट किया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. Donne says in Good Morrow, the good morrow, let maps to other, words on words have sown. इन्होंने द गुड मोरो में ये लाइन बोली हुई है. Let us possesses one word, each hath one and each one. बहुत ही डीप मीनिंग इसमें लिया गया है. मेन फीचर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री. Main feature of metaphysical poetry include skillful use of wit and consist exhibition of learning, harsh versification, passionate thought, religious and dramatic elements, directness of speech, abrupt beginning, harsh rhyme, significant speculations and ordinary speech mixed with puns, paradoxes, colloquial language, argumentative presentation of emotion, and daring imagery or metaphysical conceit. Type and themes. The metaphysical poets turned away from the long old-fashioned work of Spencerians. स्पेंसर जो पोइट हुए थे, एडवर्ड स्पेंसर, स्पेंसरियंस, and concentrated their efforts on short poems and lyrics dealing with the themes of love of woman and love or fear of God. Often poems are presented in the form of arguments. देखिए अब हम आपको इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं, समझा देते हैं. जो मेटाफिजिकल में जो कविता में जो अहंकार शब्दावली की बहुत अधिकता है और उनकी सभी अभिव्यक्तियाँ कैसी हैं, बहुत ज़्यादा गूढ़ मानी जाती हैं. इस कविता के जो टर्म के जो लीडर माने जाते हैं वो डन माने जाते हैं. डन ने अपने जो फॉलोवर्स को इस अहंकार में ही प्रकट करना सिखाया है, जिसका अर्थ है दूर दराज के साहित्य प्रतीकों को तुलना. ये हमें सनराइजिंग्स में मिलते हैं. उन्होंने ये कंसीट भूगोल में भी ग्रहण किए हैं. जो इनके मोस्टली जो है मेटाफिजिकल जो पोइट हैं वो प्राय कैसे हैं, रहस्यवादी हैं सारे के सारे. डन द वैगन की कविताओं में ईश्वर से वार्तालाप की भी प्रेजेंट किया गया है. उन्होंने प्रेजेंट किया है कि वो ईश्वर से बातचीत करते हैं. ये विश्वास करते हैं कि केवल आध्यात्मिकता ही वास्तविक संसार है और इस संसार की जो सभी वस्तुएं हैं वो केवल कैसी हैं, वो हमको एक रिफ्लेक्शन के रूप में दिख रही हैं, नथिंग. वास्तविक संसार में तथा इस संसार की वस्तुएं मात्र छाया है, ऐसा इनका मानना है. मेटाफिजिकल जो है कवि पिछले युग की काव्य शैली को अस्वीकार करते हैं तथा अपनी शैली को भद्दा व कठोर बना लिया इन्होंने. उन्होंने इसको जो शॉर्टली कहा जाए तो हम कह सकते हैं, धारणा है कि कविता की सुंदरता एवं माधुर्य की
स्थान पर उन्होंने गूढ़ एवं अद्भुत तुलनाओं का प्रयोग किया। उन्होंने वर्णन को भी त्याग कर विश्लेषण को स्वीकार किया है। मधुरता के स्थान पर ध्वनि की कर्कशता मिलती है। आदर्शपूर्ण व पारंपरिक जो प्रेम कविताओं के स्थान पर डन की वास्तविकवादी कविताएं लिखी हैं। परिणाम स्वरूप कवियों ने अपनी निजी शैली विकसित की है तथा उनकी कविताओं ने बहुत सरलता से एक दूसरे से भेद किया जा सकता है। यह कहा जा सकता है कि वह इस विधा की जो कविता में ऐसा बहुत कम है जो हृदय को छूता हुआ, क्योंकि इसमें हृदय की जगह बुद्धि की अधिकता है। ये इंटेलेक्चुअल अपील करती है, हार्टली अपील नहीं करती है। नेचुरली अगर हम इसको देखते हैं तो ये जो मोस्टली जो पोएम्स हैं वो अस्पष्ट बनी रहती हैं, क्लियर नहीं होती हैं। जो इसमें भावनाएं हैं वो तार्किकता की द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं, मतलब इसमें लॉजिकल आर्गुमेंट्स किया जाता है, ना कि उसमें जो फीलिंग्स इमोशंस के बारे में बात करते हैं वो चीज़ नहीं होती है। जो जैसा कि मैंने अभी आपको इसमें बताया था, इसमें आर्गुमेंट्स होता है। जब कभी भी ये विचारों में खोए होते हैं, ये मान लीजिए संपूर्ण जो मेटाफिजिकल कविता की दो समान भागों में विभक्त किया जा सकता है। एक तो आपका होता है श्रृंगारपूर्ण एवं धार्मिक कविता। इन्होंने दो उसमें अभिव्यक्त किया है, एक तो लव उसमें और दूसरा स्पिरिचुअल उसमें। ओके। डन की जो इसके आप फाउंडर माने जाते हैं, परंतु इन्होंने अपनी कविताओं की अपेक्षा धार्मिक उपदेशों को अधिक मूल्यवान मानते हैं। वह अपनी कविताओं को एलेजी, सटायर्स तथा सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने इस तरह का रिप्रेजेंटेशन दिया है। बिगनिंग ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। Metaphysical poetry began early in the Jacobean age, the last stage of the age of Shakespeare. John Donne and his followers wrote metaphysical poetry in 17th century. 16th century देखिए मानी जाती है आपकी एलिजाबेथन एज, रेनेसा और शेक्सपियरियन एज, लेकिन ये 17th century में इनके बाद आए, शेक्सपियर के बाद आए उनकी लास्ट स्टेज पर। एंड दिस ट्रेडिशन वाज रिवाइव्ड इन इंग्लैंड एंड अमेरिका इन 20th century, और ये रिपीट किया गया 20th century में। देखिए जो डिफरेंट क्रिटिक्स के जो व्यूज आते हैं इसके बारे में वो भी डिफरेंट ही होते हैं। जो ड्राइडन और जो जॉनसन है, बीइंग न्यू क्लासिकल क्रिटिक, यूज दिस टर्म मेटाफिजिकल इन अ निगेटिव सेंस। जो ड्राइडन और जॉनसन है ये न्यू क्लासिकल पोइट हैं, इन्होंने इसको मेटाफिजिकल को निगेटिव सेंस में यूज किया। जॉनसन से द मोस्ट heterogeneous ideas are yoked by violence together। लेकिन उसी जगह थॉमस स्ट्रीम इलियट gives this term metaphysical a place of honor। He appreciated metaphysical poets। उन्होंने appreciate किया metaphysical poets को। metaphysical poet हमारे कौन कौन थे? जो मेटाफिजिकल पोइट्री का जो स्कूल माना जाता है वो कौन कौन थे इसमें देख लेते हैं। मेजर मेटाफिजिकल पोइट्स आर जॉन डन, जो ये तो इसके इस्टेब्लिश करने वाले हैं, रॉबर्ट हैरिक हैं, थॉमस कैरियो हैं, रिचर्ड क्रेशियो हैं और हेनरी वॉगमन है, जॉर्ज हर्बर्ट हैं, लॉर्ड हर्बर्ट हैं, अब्राहम कॉले हैं, एंड्रयू मार्वल हैं, एडमंड वेलर हैं। ओके, ये आपके मेटाफिजिकल पोइट्स हैं। तो इनके जो मेन लीडर हैं जॉन डन, इनके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। वैसे तो आप इनके बारे में पढ़ चुके होंगे इनका लाइफ स्केच, लेकिन फिर भी हम इनके बारे में, क्योंकि ये इसके लीडर हैं तो हम इनके बारे में आपको थोड़ा बता देते हैं। जॉन डन एज अ मेटाफिजिकल पोइट 1537 से 1631 इनका पीरियड माना जाता है। जॉन डन वॉज द लीडर एंड फाउंडर ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। Donne's poetry is intellectual in nature. It is replete with witty conceit. It is intellectual. It's not appeal to heart. It is full of imagery, dramatic elements, directness of speech,
एंड हार्श राइम। इसका जो रिदम होता है वो बहुत कर्कश होता है। His best known work are The Progress of the Soul, The Anatomy of the Word, An Elegy, and Epithelium। ये इनके मोस्ट फेमस वर्क हैं। Donne's poetry is characterized by intellect, in which emotions are fused. Donne passionately feels a thought and experiences it intensely. That is why T.S. Eliot says, a thought to Donne was an experience. It modified his sensibility. जो ये विचार है डन के, उनके अनुभवों ने उनको मॉडिफाई कर दिया, उनकी सेंसिबिलिटी को। और देखा जाए तो इनकी जो वास्तविकता होती है, जो रियलिटी होती है, ये आध्यात्मिकता से रिलेटेड बातें करते हैं। इनके बारे में टी.एस. इलियट ने ऐसा कहा है। कॉम्बिनेशन ऑफ थॉट एंड फीलिंग। मेटाफिजिकल पोइट्री इज ब्लेंड ऑफ पैशन, ऑफ एंड थॉट। T.S. Eliot think that T.S. Eliot ऐसा सोचते हैं, पैशनेट थिंकिंग इज द चीफ मार्क ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। दिस इज एन इंटेलेक्चुअल एनालिसिस ऑफ इमोशन इन Donne's poetry. Though every lyric arises out of some emotional situation, the emotion is not merely expressed, rather it is analyzed. ओके तो ये तो था आपको मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में, कौन कौन इसका लीडर है, कैसे ओरिजिन हुई, कब हुई, किसने इसके लिए क्या कहा है, इस टर्म का मतलब क्या है। मैंने आपको ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द मेटाफिजिकल पोइट्री आई हैव डिस्क्राइब यू। ओके, आई होप you will get a lot of information related to metaphysical poetry, and I will meet you in next class with next topic. Okay,